Hello students, class 11th physics, chapter number 10, mechanical properties of fluids. Topic is Pausli's formula. आज की क्लास में Pausli's formula क्या होता है, ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये कैसे ड्राइव करते हैं, इसके अंदर फ्लूइड रेजिस्टेंस क्या होता है और इसके बेस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल and press the bell icon to get all notifications. Now, Pausli's formula क्या होता है, इसके लिए हमने कंसीडर किया एक नैरो ट्यूब के अंदर एक फ्लूइड फ्लो करता है। नैरो ट्यूब के अंदर एक फ्लूइड फ्लो करता है। Now, the layers which are very close to this container or this tube, जो हमारी लेयर्स लिक्विड की लेयर्स इस ट्यूब के वेरी क्लोज हैं, जो पास में हैं, उनकी स्पीड कम होती है और जो हमारी लेयर्स इससे दूर होती हैं, इस ट्यूब की वॉल से दूर होती हैं, उनकी स्पीड ज़्यादा होती है। ना पॉजली ने एक फॉर्मूला ड्राइव किया किसके लिए, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। इस नैरो पाइप के अंदर पर यूनिट टाइम वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कितना फ्लो करता है और वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। Now the volume of the liquid flowing out per second through a horizontal capillary tube. This horizontal capillary tube of length suppose L, radius is suppose R, under the pressure difference P across its ends is given by capital Q is equal to this volume of the liquid, total volume of the liquid upon time is equal to this pi P R power 4 upon eta L. Here this eta is the coefficient of viscosity of the liquid. तो पॉजली एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं and this formula indicate that the volume of the liquid flowing per second is equal to pi p r power 4 upon 8 eta L. Now this is called Pausli's formula. अब इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हम कैसे करेंगे। now डेरिवेशन के लिए Pausli found that the rate of flow of the liquid through the capillary tube, इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो हमारा लिक्विड फ्लो करता है पर सेकेंड, वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू पॉइजलीज, द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस ऑफ द ट्यूब। जो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड पर सेकेंड फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस ऑफ द ट्यूब। नंबर 2, द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ईटा। इस ट्यूब के अंदर से फ्लो करने वाला लिक्विड का वॉल्यूम पर सेकेंड प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ईटा। ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी and it is also found that the volume of the liquid flowing per second directly proportional to pressure gradient P upon L is the pressure gradient, that is the rate of flow of the liquid is directly proportional to this pressure gradient. Now on combining all these three, the rate of flow of liquid, that is volume per unit time, is directly proportional to P R power 4 upon eta L. और ये proportional sign रिमूव करते हैं तो this is constant pi upon 8. Therefore volume of the liquid flowing per second is equal to pi by 8 P R power 4 upon eta L. So this formula is known as Pausli's formula. And this volume of the liquid flowing per second can be denoted by capital Q. And this is also denoted by capital V. And this capital Q means the volume of the liquid flowing per second. And this formula can be written as delta P upon this 8 eta L upon pi R power 4. This delta P is the pressure difference between the ends of the tube. Delta P is the pressure difference between the ends of the tube. Therefore, this delta P upon x, this quantity is represented by suppose x, where this x is equal to 8 eta L upon pi R power 4.
तो दिस टर्म और दिस क्वांटिटी इज नोन एज फ्लूइड रेजिस्टेंस। इफ वी कंपेयर दिस रिलेशन, यदि हम इस रिलेशन का कंपैरिजन Q इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन एक्स का कंपैरिजन ओम्स लॉ इन डीसी से करते हैं। ओम्स लॉ इन डीसी क्या है? I इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन आर। तो यहाँ पर डेल्टा पी का मतलब प्रेशर डिफरेंस एंड हियर दिस डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर। एंड जब किसी भी वायर के दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो करंट फ्लो करती है। सिमिलरली एक ट्यूब के और एक पाइप के एंड्स के अक्रॉस यदि कुछ प्रेशर डिफरेंस है तो लिक्विड फ्लो करता है। एज यू नो इन दिस ओम्स लॉ इन डीसी, ओम्स लॉ के अंदर दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस इज द रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। सिमिलरली हेयर दिस टर्म, ये टर्म यहाँ पर x विच इज इक्वल टू ए थीटा एल अपॉन पाई आर पावर 4 ठीक इसी तरह का रोल प्ले करती है। जैसे ये इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस आर, उसी तरह से ये ट्यूब के अंदर जब लिक्विड फ्लो करता है तो दिस टर्म एच ईटा एल अपॉन पाई आर पावर 4 फ्लूइड रेजिस्टेंस का कम करती है। तो इस तरह से हम पॉइजलीज फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। पॉइजलीज फार्मूला आप जान गए कि क्या होता है? दिस वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड एंड दिस इज गिवन बाई V upon T, volume of the liquid flowing per second, this pi upon 8 P r power 4 upon eta L. This is Poiseuille's formula. Now numerical based on this topic. Numerical number 1. If two capillary tubes of radii R1 and R2 and having length L1 and L2 respectively are connected in series across a head of pressure P, find the rate of flow of the liquid through the tubes if eta is the coefficient of viscosity of the liquid। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहता है कि टू कैपिलरी ट्यूब, सपोज दिस कैपिलरी ट्यूब नंबर 1 एंड दिस सेकेंड हियर दिस कैपिलरी ट्यूब नंबर 2 एंड लेंथ आर गिवन। पहली की लेंथ हमारी L1, दूसरी कैपिलरी ट्यूब की लेंथ L2 एंड द रेडियस ऑफ फर्स्ट इज R1 एंड द रेडियस ऑफ सेकेंड इज R2 एंड दोनों एंड्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना है? P है। देन फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड। तो इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है। इस कंबाइंड ट्यूब के अंदर दोनों ट्यूब को जब सीरीज में हम ज्वाइन कर देते हैं तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड हमें फाइंड करना है। तो नाउ हियर लेट P1 एंड P2 बी द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट एंड सेकेंड कैपिलरी ट्यूब। हमने सपोज किया पहली कैपिलरी ट्यूब के अक्रॉस P1 प्रेशर डिफरेंस और दूसरी कैपिलरी ट्यूब के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस इज P2। नाउ देयर फ्लूइड रेजिस्टेंसेस आर, हमने पहले अभी टॉपिक में डिस्कस किया फ्लूइड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो दिस फ्लूइड रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय R1। तो पहली ट्यूब के लिए फ्लूइड रेजिस्टेंस H eta L1 अपॉन पाई R1 पावर 4। सिमिलरली सेकेंड कैपिलरी के लिए फ्लूइड रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू H eta L2 अपॉन पाई R2 पावर 4। तो दीज आर द फ्लूइड रेजिस्टेंस फॉर बोथ कैपिलरी ट्यूब्स, दोनों के लिए अलग अलग फ्लूइड रेजिस्टेंस। नाउ व्हेन द ट्यूब्स आर इन सीरीज देन टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू दिस इज फ्लूइड रेजिस्टेंस। और ठीक उसी तरह से ये ऐड होता है जैसे हमने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऐड किया था ओम्स लॉ के केस में। Now this R is equal to R1 plus R2, दोनों की वैल्यूज पुट R1 is equal to A theta L1 upon pi R1 power 4 plus R2 is equal to A theta L2 upon pi R2 power 4। यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं A theta upon pi, तो दिस इज L1 upon R1 power 4 plus L2 upon R2 power 4। Therefore, rate of flow of liquid through the tubes, we know that this rate of flow Q is equal to, and this is volume, total volume upon time, total time is equal to pressure difference upon R, fluid resistance, this pressure difference upon fluid resistance, this is the total fluid resistance। और ये total हमने यहाँ पर calculate किया। Now on putting the values and this delta P is the pressure difference, दोनों ट्यूब के across pressure difference क्वेश्चन में given था, हमें P था, दोनों की वैल्यू रखते हैं।
तो डेल्टा P इज P एंड द टोटल फ्लूइड रेजिस्टेंस इज दिस। वैल्यू रखने पर ऑन सॉल्विंग दिस इज P इंटू पाई अपॉन 8 ईटा इंटू L1 अपॉन R1 पावर 4 प्लस L2 अपॉन R2 पावर 4। तो इस तरह से हम दोनों ट्यूब के सीरीज कॉम्बिनेशन से रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल नंबर 2, two capillaries of the same length and radius in the ratio of 1:2 are connected in series and a liquid flows through this system under the streamline condition if the pressure across the two extremes ends of the combination is 1 meter of water, then what is the pressure difference across the first capillary and number 2 across the second capillary? Here also given that the length L1 is equal to L2 is equal to L. दो कैपिलरी ट्यूब दोनों की लेंथ इक्वल एंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई R1 अपॉन R2 इज 1/2 एंड बोथ कैपिलरी ट्यूब्स आर जॉइन इन सीरीज। तो दोनों कैपिलरी ट्यूब्स को हमने इस तरह से सीरीज में ज्वाइन किया। अब दोनों के एक्सट्रीम एंड्स के अक्रॉस प्रेशर का डिफरेंस इज इक्वल टू 1 मीटर ऑफ वाटर, राइट, दैट इज P1। इसके अक्रॉस सपोज P1, इसके अक्रॉस सपोज P2, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 1 मीटर ऑफ वाटर। हमने यहाँ पर लेट किया P1 एंड P2 आर द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट एंड सेकेंडरी कैपिलरीज। नाउ वी नो दैट द rate of flow of liquid, that is the volume of the liquid flowing per second, V is equal to pi upon 8 into PR power 4 upon eta L। पॉइजलीज फॉर्मूला जानते हैं आप। नब दोनों के अंदर, दोनों ट्यूब्स के अंदर रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इक्वल होगा। जितना 1 सेकेंड में इस पहली कैपिलरी ट्यूब से लिक्विड फ्लो करता है उतना ही लिक्विड सेकेंड कैपिलरी ट्यूब से फ्लो करेगा। देयरफॉर दोनों का हमने रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इक्वल किया। दिस इज पाई P1 R पावर 4 अपॉन 8 ईटा L। पहले की रेडियस R थी, दूसरे की रेडियस हमारी 2R, बिकॉज रेशो इज R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारा फॉर्मूला पॉइजलीज फॉर्मूला। इस पॉइजलीज फॉर्मूले को हमने दोनों कैपिलरी ट्यूब्स के लिए लिख दिया। और क्योंकि दोनों का रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड सेम है, क्योंकि दोनों में इक्वल ही वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लो करेगा। तो on solving here, this P1 is equal to 16 P2 because here this R and here this is 2R whole power 4 and बाकी सेम है। तो on मतलब solving this P1 is equal to 16 P2। Now again we know that this P1 plus P2 is equal to 1। On putting the value of P2 from here, P2 is equal to P1 upon 16। तो P2 की जगह पर हमने P1 अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। देन ऑन सॉल्विंग दिस P1 इज इक्वल टू 16 अपॉन 17 मीटर ऑफ वाटर। दिस इज द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द फर्स्ट ट्यूब। सिमिलरली P2 इज इक्वल टू दिस 1 माइनस P1। नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ P1 इज 16 अपॉन 17 इज इक्वल टू P2 कितना 1 अपॉन 17 मीटर ऑफ वाटर। क्या गिवन था? दो कैपिलरी ट्यूब्स हमारी, दोनों की लेंथ सेम थी, रेडियस की रेशो 1/2। हमें दोनों के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना है। कॉम्बिनेशन के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस गिवन है 1 मीटर ऑफ वाटर। तो पॉइजलीज फार्मूला लिखते हैं हम। पॉइजलीज फार्मूले को दो बार दोनों ट्यूब्स के लिए, क्योंकि दोनों में रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड सेम होना है। सीरीज में जितना 1 सेकंड में यहाँ से फ्लो करता है लिक्विड उतना ही इसमें से फ्लो करता है। तो दोनों को हमने इक्वल किया। सॉल्व करने पर P1 इज इक्वल टू 16 P2। ना ये हमें गिवन था P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ P2 फ्रॉम हियर, तो दिस P1 प्लस P1 अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज ऑन सॉल्विंग 16 अपॉन 17। सिमिलरली P2 इज इक्वल टू दिस 1 अपॉन 17 मीटर ऑफ वाटर। तो इस तरह से हम ये सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया। थैंक यू।